لیکن سیدنا عمر اپنی ذات کے تعلق سے سختی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے، اور اتنا عمل کیا، پھر جب امیر المومنین بنے تو پھر عمل کروایا، اور اتنا سخت عمل کروایا حضرت عمر نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے عمر تو اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، مضبوط دیوار ہے۔ حضرت عمر صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے، فرمایا تم بھی ان فتنوں کے بارے میں جانتے ہو جو نبی کریم نے بیان فرمائے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ بھی حاضر تھے، عرض کی امیر المومنین جانتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، تمہارا ہمسایہ پڑوسی تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس کی نجات یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، صدقہ دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے، نیکی کا حکم دے کے مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، ہمسائے کی آزمائش سے بچ جاؤ گے۔ حضرت عمر کہنے لگے میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں اور فتنے کی بات کر رہا ہوں جو دین کے معاملے میں آئے گا۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے اے عمر میں اس فتنے کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن ایک دروازہ ہے اس فتنے کا جس دروازے نے اس فتنے کو روکا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فوراً بولے، فرمانے لگے پھر یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے وہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹوٹ گیا تو پھر تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا؟ کہا ہاں، قانون قدرت یہ ہے، فیصلہ ہی یہی ہے، تقدیر ہی یہی ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے، بند نہیں ہوگا، پھر فتنے تیزی سے باہر نکلیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، جناب عمر گھر تشریف لے گئے، لوگوں نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا، بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ وہ کون سا فتنہ ہے، وہ کون سا دروازہ ہے جو فتنوں کے رستے میں دیوار بنا ہوا، اور پھر یہ کہ کھلا نہیں جائے گا اور توڑ دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ ایسا ٹوٹے گا کہ فتنے باہر آ جائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ چپ کر گئے اور سکتے کے بعد کہنے لگے وہ فتنے ہیں جو اسلام کی طرف آئیں گے، مسلمانوں میں پھیلیں گے، اور دروازے کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور فرمایا یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا، عمر شہید کر دیے جائیں گے۔ دوستو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی کہ ایک مضبوط مزاج، ایک مضبوط قلعہ۔ بہت پیار کریں اپنے بچوں سے، قرآن مجید نے کہیں بچوں سے پیار کرنے کا کہا نہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن مجید نے تو تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بچوں سے تو فطرتی پیار ہوتا ہے۔ دولت کو اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا ہے، تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے۔ ضرور پیار کریں اپنی اولاد سے، ضرور پیار کریں اپنے دوستوں سے، لیکن اس چکر سے باہر نکل آئیں کہ میں اگر یہاں سختی کروں گا تو فلاں میرے خلاف ہو جائے گا، تو ہو جائے، آپ تو انہیں دوائی تک نہیں کھلا سکیں گے، یہ تو بیمار کے بیمار رہ جائیں گے اگر آپ نے سختی نہ کی۔ یہ گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں کہ میرے دوست بھی مجھے اچھا کہیں، فلانا مجھ سے نہ بگڑ جائے، فلانا مجھ بگڑ جائے جس نے بگڑنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، کبھی بندوں کی پرواہ نہیں کی، بندے کیا کہتے ہیں، کسی کو آنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو الحمدللہ، لیکن انہوں نے زندگی بھر اگر پرواہ کی ہے تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ ہم نہ اپنے آپ کو کسی قسم کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہتے، مجھے کوئی برا نہ کہے، او بھائی کہہ لے جس نے کہنا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہے، 1000 دفعہ کہے، 100 بسم اللہ کہے، لیکن آپ اصول پر کھڑے رہیں، آپ مضبوط بات کریں، آپ طاقتور بنیں۔ آپ کی طبیعت، حضرت عمر کا درہ تھا، وہ لٹکا کرتا تھا اور پورے جوش و خروش سے لٹکتا تھا۔ حضرت عمر کو استفسار کی عادت تھی، وہ سوال پوچھتے تھے، کہاں تھے تم، کیوں نہیں یہ کام کیا؟ یہ جو مزاج ہے نا جی، فلانا بڑا درویش ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، غلط کرتا ہے، نقصان اٹھائے گا، کیوں نہیں کہتا کسی کو کچھ؟ کہنا چاہیے، جہاں کوئی غلطی کرے۔ حضرت عثمان غنی تو مسجد میں ایک صحابی جمعے میں دیر سے آئے، فرمایا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا اور فلاں کام کر رہا تھا۔ میں وقت پہ آیا کرو، جمعے کا دن ہے، آپ کو پتہ نہیں اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہو گیا، پھر میں وضو کرتے کرتے 5 منٹ اور ہو گئے۔ فرمایا تم وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے ہو، حالانکہ نبی پاک نے غسل کرنے کا فرمایا۔ آئندہ جلدی بھی آنا اور غسل کر کے یہاں تک باریک، اور وہ ڈانٹ دیتے تھے، ان کو کہنا آتا تھا، لیکن یہاں ایک طبیعت عجیب ہے لوگوں کی، لوگ سمجھتے ہیں اوہ میں بات کروں گا تو فلانا کیا سوچے گا، وہ سوچ لے اس نے جو سوچنا ہے، اسے کو سوچے، تھوڑا نہیں زیادہ سوچے، اور
झिझक के नहीं, खुल के सोचे, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है आप उस जिम्मेदारी को समझें। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर बनाते थे, फिर उनका हिसाब करते थे। एक गवर्नर के बारे में पता चला रेशम का लिबास पहनता है, बहुत आसानी में है, बहुत मौज करता है, क्या बात है, खा रहा है, पी रहा है, लगा रहा है। उमर ने बुलाया, बुला के फरमाया इसके कपड़े उतरवा के ना इसे टाट का लिबास पहनाओ, और आज के बाद ये गवर्नर ही नहीं करेगा, ये माले गनीमत के ऊंट चराया करेगा। एक वजीर को लगाए पाकिस्तान में आप ऊंट चराने के लिए, सिर्फ एक को। हजरत उमर की एक उस मर्द खुदा मस्त की एक बात पर अमल करो, एक वजीर को ऊंट चराने पे लगाओ। लेकिन तुमने तो मजाक बनाया हुआ है, तुम्हें पता है हमने निकाला तो दूसरी सियासी जमात में चला जाएगा। तुम तो डरते हो, तुम्हें तो ऐसे लोग चाहिए जिनके वोट ज्यादा है। तो जनाबे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते थे। दो टोक बात, मजबूत बात। आप तो खुशामद को सख्त नापसंद करते थे। एक शख्स ने आपकी तारीफ की तो फरमाने लगे मेरे पास मिट्टी होती तेरे मुंह में डाल देता, मेरी क्यों तारीफ कर रहा है। यहां तो आप पीरों के पास चले गए, उन्होंने खुशामदी खलीफे रखे हुए हैं, कहते हैं किबला या आलम फलाना टिंगड़ा, और ये खुद पास बैठ के मन काला आना आलिमुन फाहुवा जाहिल। हुजूर ने फरमाया जो अपने मुंह से कहे मैं आलिम हूं वही तो जाहिल होता है। आप खुद से तारीफें सुन रहे हैं और आपका दावा फकीरी का है, हटो बचो की दास्तान है और आपका दावा फकर का है। आपने वजीफा खार नकीब खतीब शायर अदीब रखे हुए हैं तारीफें कराने के लिए, और पंजाबी में कह दूं तो मुझे कह लेने दो, आपने सेपी रखे हुए हैं, सेपी जो आपसे खाते हैं और आपके गुण वो आपसे खाते हैं लेके, उन्होंने को बल्ले बल्ले क्या बात है, क्या बात, तारीफें करते हैं और बड़े शौक से बैठ के सुन रहे होते हैं लोग। हज़रत उमर कहते हैं तेरे मुंह में मिट्टी डालूंगा अगर मेरी तारीफ। तो आप में जुर्रत इजहार हो, आप बात कहें। इकबाल कहते हैं अपने भी खफा मुझसे हैं और बेगाने भी नाखुश। ये जरा लफ्जों की तरतीब देखो, अपने भी खफा कौन है, अपने भी खफा मुझसे हैं और बेगाने भी नाखुश, क्योंकि मैं ज़हर हलाल को कभी कह नहीं सका कांद। मैं कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मेरे से नाराज इसलिए हैं लोग कि कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे, और लोगों को हक अच्छा लगता, लोगों को तारीफें अच्छी लगती। तो याद रखिएगा कि हजरत उमर में ये जुर्रत इजहार थी, बात करना जानते थे। बसरा के गवर्नर की शिकायत आई, एक मुजाहिद आए और आके कहा हुजूर वो जिस शख्सियत को आपने बसरा का गवर्नर बनाया मुझे उनसे बड़ी शिकायत है। कहा क्यों? फरमाने लगे मैं पलट पलट कर दुश्मन पर हमला करने की कुव्वत रखता हूँ, एक ताकतवर और जांबाज फौजी हूँ। मैंने बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ाई की है, जंग की है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला से यह रवायत मौजूद है। कहने लगे मैंने बड़ी जद्दोजहद से लड़ाई की, लेकिन आपके बसरा के गवर्नर ने एक तो मुझे माले गनीमत में से हिस्सा पूरा नहीं दिया जो मेरा बनता था, और फिर ये कि जब मैंने मुतालबा किया तो मुझे 20 कोड़े मारे, मेरा सर मुंडवा दिया, मुझे तकलीफ दी है। आप किसी ऑफिसर के खिलाफ बात करके तो देखें। और हमारे मुल्क में वैसे भी जो मुलाजिम है वो ड्यूटी नहीं करते, वो अफसरों को राजी करते हैं। अफसर राजी रहें तो आप ड्यूटी करें चाहे न करें, और अगर अफसर नाराज है तो फिर आप ड्यूटी करें भी सारी तो फिर भी आप ड्यूटी नहीं कर सकते, उस सीट पे कायम। ये चलता है हमारे सरकारी इदारों में इल्ला माशा। उसने कहा कि एक तो मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे माले गनीमत नहीं दिया, और अगर मैंने बात की तो फिर आपको पता है जिसकी बात करें बिगड़ जाता है, तो फिर मुझे कोड़े लगे 20 और मेरा सर मुंडवा दिया, और ये बाल मैं आपके पास लेके आया हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर साहब को खत लिखा, और ये जरा जुर्रत देखो सैयदना फारूक आजम की। आप फरमाने लगे बात मैंने सुन ली है, गवाहियां मैंने मंगा ली है, पता मैंने कर लिया है, मालूमात मुझे हो गई है, जो ये बंदा कह रहा है बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको बदला देना है, सर भी मुंडवाना पड़ेगा। मैं आपको सही सनद से रवायत सुना रहा हूं मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से, यानी गवर्नर का सर मुंडा जाएगा एक आम आदमी के लिए। इतनी जुर्रत तो आप छोटे से अफसर के लिए नहीं कर सकते। फरमाया सर भी आपका मुंडा जाएगा, 14 कोड़े भी लगेंगे, बस आप ये बता दें कि आपने इसके साथ ये जो सारा कुछ किया ये अकेले में किया कि लोगों के सामने किया।
अगर अकेले में किया है तो सजा तन्हाई में अकेले में, और अगर सबके बीच किया है तो सजा भी सबके बीच मिलेगी। हजरत फारूक आदम ने उस शख्स को दिया, रुका, भेजे 7 लोग, वहां जाके गवर्नर साहब को भरे मजमे में जब लोगों के बीच उस शख्स ने कहा आइए मैं आपका सर मूंडने लगा हूं, और जब उसने उस तरह पकड़ा, सर मूंडने का सामान उठाया, लोग कहने लगे यार गलती हो गई, चल माफ कर दे। कहने लगा क्यों माफ करूं? गोया वो जुबाने हाल से कह रहा था, फज्द में कह रहा था, कैसे माफ करूं, ये आम हुकूमत नहीं, ये रसूलुल्लाह के खलीफा की हुकूमत है, खलीफा बरहक की हुकूमत है, यहां किसी गरीब पर कोई ज्यादती हो सकती नहीं है। उसने कहा कि मैं नहीं माफ करता, मैं किसास लूंगा, बदला लूंगा। कुर्बान जाए उस गवर्नर की अजमत पे। उसने कहा यार तुम ना बोलो, जुबान हाल से कहने लगे तुम ना बात करो, मेरी वाकई गलती है। गवर्नर साहब मिंबर से उतरे, कुर्सी से उतरे और जमीन पे बैठ गए, सर से पगड़ी उतारी, फरमाया तू ले यार बदला, उतार मेरे सर के बाल। और जब वो जमीन पे बैठ गए तो फिर वो शख्स तड़प गया, फिर उसका कलेजा ज़ौक शौक से गोया फटने के करीब आया। कहने लगा अल्लाह तू गवाह हो जा, मुझे मेरा किसास गोया मिल गया है, मैं तेरी रिदा के लिए इसे माफ करता हूं। इसमें आप उस मजदूर का भी, उस गरीब का भी कमाल समझें जो डर के सहम के अंदर नहीं बैठा। इसको हकीकी जमहूरियत कहते हैं, ये असल आजादी राय है। जाकर के बादशाह वक्त, हुकूमत वक्त के साथ बात करना और अमीर वक्त से कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुए, जुर्रत इजहार। और फिर कमाल देखिए, अमीरुल मोमिनीन का सदा भी सुनाई, और सारे लोग हक को कबूल करते नहीं हैं। गलती दलेर लोग माना करते हैं, गलती जुर्रतमंद लोग माना करते हैं। अपने अंदर कमजोरी हो तो कोई खास आदमी होता है जो अपनी कमजोरी का एहसास और इकरार करे। कुर्बान उस गवर्नर की शान पर भी जिन्होंने कहा मैं बदला दे के मिसाल कायम करूंगा। अपने अंदर ये सारी चीजें पैदा करने की जरूरत है, सिर्फ हमें बदले लेने नहीं। अगर हमारी गलती है तो हमें फिर थोड़ा कटहरे में आने की भी आदत होनी चाहिए, जमीन पर बैठने का भी हमारे अंदर फिर हौसला होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं हम नहीं, बाकी सारी दुनिया। तो हजरत उमर को अल्लाह ने ये कमा, और फिर ऐसे ही नहीं फैसला कर देते थे, ऐसे नहीं। हमारे वो जो देसी माहौल में पंचायत में लोग होते थे ना, उनका असरात भी मौजूद है। सच्चा होने के लिए दलील की ज्यादा जरूरत नहीं होती उन लोगों के पास, बस जड़ा पहलो टुर गया, जड़ा जो चौधरी साहब के पास, वकील साहब के पास, बड़े के पास, प्रिंसिपल साहब के पास पहले चला गया ना, पहले, और उसने अपनी बात सुना ली है। तो मैंने ये कहता भी लोगों को सुना है कि तुहानू तो सदना पे आए थे, आप ही आया, लिहाजा चूंकि इसने मेरी शान मान लिया तो फैसला भी इसी के हक में होगा, तो पहले आया। मिजाज होता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि फैसला करते थे तो बात की गहराई में उतरने की आदत थी, गहराई में। थोड़ा सा ना, जब तक आप दूसरे की बात ना सुन ले, राय ना कायम करें, फौरन फैसला ना कर ले सुनी सुनाई बात पे, बंदा कोई ना। और ये इतने प्रोपेगेंडे मशहूर हो, एक तरफ बात सुनते हैं ना, आपने 100 जगह पे ये मसला सुना होगा कि जिहड़ा उमरा कर ले होते थे आज फर्ज हो जाता है, तो ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप सारी दुनिया को समझाएं। बीबीए किया नौजवान है, मुझे जानता है, उसकी बीवी उम्मीद से थी, चांद ग्रहण हो गया, पढ़ा लिखा आदमी है, तो मुझे कहने लगा जी ये चांद ग्रहण हो जाए तो बीवी हमला हो तो क्या करना चाहिए। मैंने यार किस किस जगह उलझ गई, कौन कहाँ फंस गई, कोई कहीं नहीं लिखा। उसे आराम करने तो कुछ भी नहीं होता, बैठना नहीं तो आप किन तो हम मात में उलझ गए। तस्वीर का दूसरा रुख तो देखें, मसले की तहकीक तो करें। हजरत उमर के पास बीबी आ गई, हम एक तरफा बात सुनते हैं, यक तरफा, और यक तरफा बात सुन के ज़हन बना लेते हैं। और फिर जब जो इस तरह का मसला होता है, इस तरह का, जरा गौर कीजिएगा। यानी अगर बीबी कहे किसी से कि फला आदमी ने मुझे तंग किया है, तो बात बंदे की मानी जाएगी, बीबी की, बंदा जितना मर्जी मोअज़्ज़ज़ हो। लोग कहते हैं फलां कह गई है, ये इतना खौफनाक हालात है, लोग तस्वीर का दूसरा रुख देखते ही नहीं। उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब देखेगा कौन। लोग दलील ही नहीं पूछते, कहते नहीं फलां कह गया। बीबी आ गई हजरत उमर के पास, आके कहने लगी मेरा शौहर बड़ा तंग करता है, बड़ी तकलीफ देता है, बड़ी आजमाइश में हूँ, बड़ा जालिम है। फरमाने लगे कौन है तेरा शौहर? उसने कहा हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला। हजरत उमर कहने लगे उसे तो मैं करीब से जानता हूँ, हुजूर का सहाबी है, नेक आदमी है। 2 आदमी और थे, उनको बुलाया, फरमाया तुम अबू सलमा को जानते हो? हुजूर कैसा है? कहा हुजूर क्या बात है,
क्या नफीस इंसान है, ये किसके बारे में बात, और उनकी अपनी बीवी। अब करीब बैठे लोग तो समझेंगे कि जब अपनी बीवी कह रही है तो मसला तो होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन एक शख्स को भेजा, फरमाया अबू सलमा को बुला के लाओ। वो आए, अहलिया बैठी थी। आपने फरमाया तेरी बीबी तेरी शिकायत कर रही है। तो अबू सलमा कहने लगे, ए उमर, इतना खुशहाल इसके खानदान और कबीले और इलाके में कोई नहीं जितना मैंने इसे खुशहाल रखा हुआ। इतना अच्छा लिबास और कोई नहीं पहनता। आज कुछ बीबियां ये भी कहती हैं ना जी, वो कपड़े लेके देने नाल की हुंदा है, खर्चा सारी दुनिया ही देती है। भाई अगर सहाबा इसको गिनते थे तो आप इसको मामूली समझते हैं? मुशवार कर रहे थे, अबू सलमा कह रहे सबसे अच्छे कपड़े ये पहनती, सबसे अच्छा खाना ये खाती, सबसे अच्छे घर में ये रहती। मसला क्या है? हाँ, अज़दवाजी वजीफा अदा करने में मैं जरा कम हूं, यहां तक बात है। बाकी इसको जिंदगी की हर आसानी और सहूलत मुयस्सर है। ये हजरत उमर है। हजरत फारूक आज़म ने दुर्रा उठा लिया और उस खातून से कहने लगे, तुझे तेरी मां रोए, तू अपने शौहर के खिलाफ बात करती है, तू अल्लाह से नहीं डरती, तू मालिक का खौफ नहीं करती, और इतने लोगों के बीच आके तूने। एक वो शख्स है जिसके मुकदमे पर फौरन जनाब उमर ने कहा कि मैंने तहकीक की है, यही मामला। और यहाँ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला वहां भी तहकीक करके बात की, यहाँ भी तहकीक करके बात की। फरमाया तू अल्लाह से डर जा, ये काम ना कर। वो भी क्या अजमत वाली खातून थी, कहने लगी मुझे तंबीह हो गई है, आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं अपने शौहर के मामले में जरूर अपने रब का खौफ करूं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम का मजबूत किला था। कोई आदमी अगर नाजायज बात करता तो रोकते, किसी पर जुल्म होता तो रोकते, कहीं ज्यादती होती तो। हजरत उमर ने अपने गवर्नरों से कहा था, तुम्हें गवर्नर इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम लोगों की पुश्तों पर दुर्रे बरसाओ या उनकी जमीनों पर कब्जा करो, तुम्हें तो इसलिए गवर्नर बनाया गया है कि तुम सुन्नत और शरीयत का नफाज करो। तुम्हें तो इसलिए गवर्नर बनाया गया है लोगों की आसानी के लिए तुम फैसले करो। बाकी एक फलसफा और है हजरत उमर की जिंदगी का। हजरत उमर कसरत सवालात के कायल नहीं थे कि बहुत पूछा जाए। आज ना हमारे यहाँ बस तफसीलात ही हो रही हैं, डिबेट ही हो रही हैं, दीन सीखा ही जा रहा है, समझा ही जा रहा है, उस पर तशरीहात ही हो रही हैं। अमल कब होना? 3 घंटे की तकरीर, 4 घंटे की तकरीर, 40 साल हो गए तकरीर करते, 45 हो गए तकरीरें सुनते, अमल कब होना? कुछ लोग बड़े ही सवाल जवाब करते हैं, पर सवाल जवाब ही करते हैं, अमल नहीं करते। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, सहाबा ने हुजूर से कुछ सवालात किए, सरकार ने जवाब दी, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही सवालात बाज नौजवानों ने कर दी। अल्लाह के रसूल नाराज हो गए। मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा सवाल है जिसका मेरे नबी के पास जवाब ना हो? हुजूर हर सवाल का जवाब दे रहे, लेकिन सवाल ही सवाल, सिर्फ बात ही बात, मसले ही मसले, और अमल नहीं। तो हुजूर नाराज हो गए, फरमाया पूछो जो पूछना है। एक शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? तो हुजूर ने फरमाया फलां तेरा बाप। एक दूसरे ने खड़े, यानी वो सवाल जिनका ताल्लुक इल्म गैब के साथ है, ये सही मुस्लिम में मौजूद है, फलां तेरा बाप है, 2 को बताया। अब हजरत उमर भाप गए कि हुजूर तो नाराज हो गए। तो जनाब फारूक आज़म उठे, हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह हम रब की बारगाह में तौबा करते हैं। और साथ कहा, हुजूर रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला। या रसूलल्लाह हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, हम बड़े राजी हैं कि इस्लाम हमारा दीन है, हम बड़े राजी हैं कि आपको अल्लाह ने हमारा नबी और रसूल बना के भेजा। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खुश हो गए। याद रखिए मेरे दोस्तों, मजबूती के साथ दीन पर अमल कीजिए, मजबूती के साथ, और मजबूती के साथ निफाज दीन की जद्दोजहद कीजिए, और मजबूत आसाब के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारिए। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको सही तौर पर अदा करने की कोशिश की। ये हज़रत उमर की ज़िंदगी का उसूल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें